As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. Rooted and built up in him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in him, which is the head of all principality and power. 11 वर्स से आगे पढ़ेंगे. In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Hallelujah. Blotting out the handwriting of the ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Hallelujah. Let no man therefore judge you in meat and or in drink, or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind, and not holding the head, from which all the body by joints and bands, having nourishment, ministered and knit together, increaseth with the increase of God. Wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances? Touch not, taste not, handle not, which all are to perish with the using, after the commandments and doctrines of men, which things have indeed a shew of wisdom in will, worship, and humility, and neglecting of the body, not in honor to the satisfying of the flesh. एक बार फिर पढ़ेंगे 23 वर्स को. Which things have indeed a shew of wisdom in will, worship, and humility, and neglecting of the body, not in honor to the satisfying of the flesh. Okay. हम देखिए, हम जब प्रभु में उद्धार होकर आए तो हमारे साथ क्या हुआ एग्जैक्टली, ये आपको इन वचनों में पढ़ने को मिलेगा. ओके, एग्जैक्टली मसीह यीशु के बीच में और हमारे बीच में, मतलब यीशु मसीह के
शरीर आत्मा प्राण और हमारा शरीर आत्मा प्राण एग्जैक्टली हुआ क्या, ये हमको पढ़ने के लिए मिलता है यहाँ पर। ओके, और यही हमारी सच्चाई है। तो हमने इस सच्चाई से अलग नहीं होना है। ये ज़बरदस्ती अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन करना है कि इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है। ओके, अपने माइंड को ठोक ठोक के, मार मार के सिखाना है, तू चुप रह, तू मुझे कुछ सिखा मत, जो वचन लिखा है वही मैं हूँ और कुछ नहीं हूँ मैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने इस वचन को अपने गहराई में समेट लेना है। देखिए, हम पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय, कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन से 23 वचन पढ़ेंगे। अब ये हमारी सच्चाई है। ओके, ये हमारी सच्चाई है। इसके अंदर से हमारा, मसीह के अंदर हम कैसे प्रवेश किए और हमारे साथ क्या क्या हुआ, हम ये बारे में देखेंगे। मसीह के अंदर हम आने के बाद हमारा उस समय क्या हो रहा था जब हमने मसीह और हमारा रिश्ता बन गया। ओके, क्या घटना हुई उसके अंदर, ये हम आंखों से नहीं देख पाए, लेकिन हम वचन के अंदर से उन बातों का जायज़ा ले सकते हैं, क्या एग्जैक्टली क्या हुआ हमारे साथ उस समय। ठीक है, देखिए कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन से पढ़ेंगे। मसीह में जीवन की भरपूरी। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया। मैंने आपको बोला था बहुत बार, है ना, कि मैंने बहुत सारे अटैक्स जब सह लिए, तब मैंने इसके बारे में पीछे है क्या एग्जैक्टली, शत्रु किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी ज्ञान बुद्धि है उनके पास, किस प्रकार का नॉलेज वो यूज़ कर रहे, मैंने उसकी खोज निकाली। तो वो मून फेसेस थे। ओके, तो वो मून फेसेस की मैंने स्टडी की और मैंने देखा, अरे बाप रे, तो ये लोग, ये इतना कुछ करना पड़ता है इनको, इतना कुछ उनको संभालना पड़ता है, इतनी सारी रीतियों के बाद वो अपने आप को प्रोटेक्टेड मानते हैं, या फिर इतना सब कुछ किया तो उनको कुछ प्राप्त होगा, वो उनका भरोसा बनता है। ओ माय गॉड। ओके, तो इस प्रकार से जब मैंने उसको स्टडी किया था, तो यहाँ वचन क्या बताता है, वो मनुष्यों की परंपराएं हैं। ओके, और वो संसार की आदि शिक्षा है। ठीक है, लेकिन वो मसीह के अनुसार नहीं है। हालेलुया। तो हम उसके पीछे नहीं जाना है। चांद, सूरज, सितारे, ज़मीन, आसमान, धूल, मिट्टी, पेड़ पौधे, कोई पशु प्राणी, कोई इंसान की, कोई किसी भी प्रकार जो ज्ञान में वो लोग चल रहे हैं, जिसके पावर्स को वो इस्तेमाल करके वो जीवन जी रहे हैं, हम उसके अंदर नहीं होना है। हम उसके बारे में अगर हमको मालूम भी है तो भी हमने उसको फॉलो नहीं करना है। ओके, इसका एकमात्र रीज़न है क्योंकि वो मसीह ने हमको नहीं सिखाया है, वो मसीह का रूप धारण नहीं करता है, वो मसीह के चरित्र में हमको लेकर नहीं आता है। बस इतना ही कारण है कि हम उनके जैसा नहीं चल पाएंगे, हम नहीं चल सकते हैं उनके जैसा। ओके, अगर वो संडे को मानते हैं, हम संडे को मानेंगे। अगर वो ट्यूसडे को मानते हैं कि नहीं ट्यूसडे को मीट नहीं खाना है, ट्यूसडे को तो ये है, वो है, नहीं, हम नहीं मान सकते हैं उसको। ऑल डेज मीट खा सकते, ऑल डेज फिश खा सकते, ऑल डेज समंदर के पानी के सारी चीज़ें जो भी हमको चाहिए हम खा सकते हैं। और अगर कोई मांस है, कोई मीट है जो हम रेगुलर हमारे फूड आइटम्स में लेकर आते, हम अगर उसको खाना चाहते, एनी डे, एनी टाइम, एनी आवर,
ओके, हम उसको नहीं मानना है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, नहीं 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 नहीं, वो नहीं, क्योंकि वो हमको यीशु के चरित्र में नहीं बनाता है अगर वैसे हम आज्ञा पालन करेंगे तो। ओके, वो रूढ़िमेंट्स उसको कहते हैं, वो परंपराएं हैं, मनुष्य को उसके अंदर से कुछ लाभ मिले हैं और इसकी वजह से वो उस लाभ को बनाए रखने के लिए वो रीति और वो परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसके चलने से वो मसीह के रूप में धारण नहीं होते हैं। ओके, तो हम कैसे होंगे मसीह के रूप में धारण अगर उन चीज़ों को हम मानना शुरू करेंगे तो। ओके, कोई नहीं, हाँ थर्सडे को ये नहीं करना है, सैटरडे को वो नहीं करना है, नहीं मत करो, ऐसा कुछ मत मानो। अगर आप मसीह है तो आपके ऐसे मानने से आप मसीह के रूप में धारण नहीं होंगे। बात खत्म करो, आप मसीह के रूप में धारण होने के लिए है तो मसीह का रूप जिससे बनता है उसी को आप कीजिए। जो मसीह का रूप धारण नहीं करता है आप उससे छुटकर आज़ाद जीवन जिए। आमीन। देखिए अब क्या है यहाँ पर, हाँ ये भी है कि आप जब ऐसा करते हैं, आज़ाद जीवन जीते हैं, तो जो उन चीज़ों को मानते हैं, वैसी बातों को मानते हैं, जो वो परंपराओं के अधीन उनका आदर रखते हैं, तो फिर वो लोगों को ठोकर लगती है। ओके, उनको गुस्सा आ जाता है कि अरे आज तो मीट नहीं खाना चाहिए, देखिए आज ये लोगों ने मीट लाया, ओ नो आज ये लोगों ने वो कर दिया, अरे आज ये नहीं करना चाहिए था, देखा इन लोगों ने आज ये करके रख दिया। तो उनके परंपरा, उनके मन ठोकर खाते, हमारा कुछ नहीं जाता है, हम उसके पीछे नहीं चल रहे। तो हम अपनी आज़ादी को जब हमारे लिए यूज़ कर रहे तो हम किसी को दुख देने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, किसी के जीवन के अंदर उसका क्लेश भरने के लिए हमने नहीं करना चाहिए। हमारी आज़ादी हम इसीलिए चलना है क्योंकि हम यीशु मसीह के चरित्र के अंदर बन रहे हैं। तो आज़ाद होकर ही मसीह यीशु के चरित्र को हम अपने अंदर ले रहे हैं। हालेलुया। यही हमारा रीज़न है कि हम कोई भी समय, असमय, मैं तो रात के 12 नहीं पता मुझे कि दिन के 12 नहीं पता। ओके, मेरे सारे 24 आवर्स, सारा समय मेरा एक समान रहता है। ओके, एक समान। जब नींद खुल गई मेरे दिन शुरू हो जाता है, जब नींद लग चुकी तो मेरा रात शुरू हो जाता है। तो वो कौन सा समय है, सूरज का है या चांद का है, मुझे परवाह नहीं है। ओके, जब दिन शुरू होता है तो हम क्या दिन के काम करते हैं, मैं वो करना शुरू कर देती हूँ। जब रात रहता है तो अगर मैं सो रही हूँ तो रात के समय जैसा मैं आराम कर लेती हूँ। ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाहर सारी चहल पहल है, दिन का समय है और हम सो रहे, और रात का समय हम जाग रहे, फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑल 24 आवर्स मैं आज़ाद हूँ। जैसा मुझे जीना है परमेश्वर के आज़ादी में, दूसरों को ठोकर ना लगते हुए, दूसरों के बातों का, विश्वास का मैं मजाक ना उड़ाते हुए। समझ में आया? तो मेरी आज़ादी मुझ में यीशु मसीह का चरित्र को धारण कराती है, ना कि किसी के देखने के लिए और उनके जीवन को क्लेश पहुंचाने के लिए। ओके, तो मेरा जीवन का आज़ादी मसीह के रूप को मेरे अंदर से प्रकट होने के लिए है। ओके, मैं आज़ाद रहकर चलती हूँ तब मेरे अंदर यीशु मसीह प्रकट हो रहा होता है कि मैं आज़ाद हूँ। मेरे अंदर से वो चहल पहल रहती है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं यीशु के रूप का चाल चलन चल रही हूँ। आमीन। तो इस प्रकार से हमने परंपराओं से अपने आप को काट कर अलग कर लेना है। ओके, जो रीति रिवाज, जो संसार के अंदर सिखाया जाता है उसके अनुसार मसीह नहीं बनता है। ओके, मसीह का रूप हम में नहीं आता है, तो हमने उससे कट के अलग हो जाना है। ओके, कोई आपको स्वीकार नहीं रहा है क्योंकि आप ऐसे कैसे भी अड़म तड़म जीवन जी रहे, क्योंकि आप आज़ाद है तो आपका जीवन उनके श्रृंखला में, उनके सीरियल में नहीं बैठता है। ओके, वो लोग आज के दिन उपवास करेंगे तो आप आज के दिन मज़े ले रहे होंगे। ओके, वो लोग आज के दिन में कोई बातें नहीं करेगा, चुप बैठेगा, एकदम शांत रहेगा, आप हंगामा कर रहे होंगे, धूम धमाल चल रही होगी प्रभु के आनंद में। ओके, तो हमारा और उनका मेल बैठता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मसीह लोगों का चरित्र, मसीह का चरित्र हमारे अंदर होना है तो वो आज़ादी में होता है।
और हम वो आज़ादी को जब चलते हैं तो हमारे अड़ोस पड़ोस के चरित्र के साथ और उनके सीरियल जो चल रहे हैं लाइफ के, वो सीरियल के अंदर हम नहीं बैठते हैं, हम उनके बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। आज के दिन वो एकदम मुंह बंद करके इतना शांत मौन धारण करके बैठे होंगे और आप यहाँ पे धूम धड़ाका चल रहा होगा परमेश्वर के गीतों के साथ, नाच रहे, उछल रहे, कूद रहे। ओके, तो ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्योंकि हम वो पीढ़ी, वो परंपराओं के अधीन नहीं है, हम परमेश्वर के आज़ादी के अधीन है। उसी के अंदर रहने से मसीह का चरित्र हमारे अंदर तैयार होता है। आमेन। इसीलिए हमको कोई भी तरह का चाल चलन जो पीढ़ियों में हमको सिखाया गया है, आज के दिन बाल नहीं करना है, आज के दिन बालों को नहीं धोना है, आज के दिन कपड़े नहीं धोना है, आज के दिन नाखून नहीं काटना है, आज के दिन वो नहीं करना है, आज के दिन ये नहीं करना है, उसके अनुसार हम नहीं चल सकते, क्योंकि उसके अनुसार चल के मसीह का रूप धारण नहीं होता है। हालेलुया। हम व्यर्थ का बंधन या व्यर्थ के बॉन्डेजेस में चले जाएंगे ऐसा करके। ओके, तो इसके लिए हमारा चरित्र और अड़ोस पड़ोस का चरित्र अलग अलग है। हम मसीह के चरित्र में बदलते जा रहे हैं, महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं, और हमारा डेस्टिनी अनंत काल का जीवन है। और यहाँ पर अड़ोस पड़ोस के लोगों का डेस्टिनी और हमारा डेस्टिनी मैच नहीं होता है। ओके, तो इसकी वजह से हम जैसे भी हो अपने आप को दोष नहीं देना है। ओके, अरे लोग तो इतने चुपचाप बैठे हैं, मैं कैसे ऐसे करूं? ओह नो, लोगों का तो आज ये समय है, मैं ऐसे कैसे? फॉरगेट इट। ओके, वो हमारे लिए नहीं है। ऐसे पालन करके हम मसीह के रूप को धारण नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए आप अपने दायरे में हैं और वो लोग उनके दायरे की बातें चल रही है, हम अपने दायरे की बातें चल रही है। अगर उनको देखकर अच्छा नहीं लग रहा है हमारा कुछ, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लेनी है। ओके ओके, अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेनी है और अपने आप को बंद करके रखना है कि मत देखो हमारी तरफ हम क्या कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हमारा भी फ्रीडम है, मसीह का चरित्र हम में होना बेहद ज़रूरी है। हमारी मंजिल है वो, हमारा डेस्टिनी है वो, हमारे जीवन का श्वास है वो। उससे अलग होकर कैसे क्या हम जीवन जिए फिर मसीही, है ना? तो इसके लिए हमारा जो चाल चलन है किसी के वजह से झुका नहीं देना है। हालेलुया। किसी के कारण दबा नहीं देना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से हम आज़ाद जीवन जी रहे हैं, पवित्र आत्मा को फ्रीडम देना है। कोई भी समय वो आपको प्रार्थना करने बिठा देगा, बैठ जाना है। ओके, कोई भी समय आपको गीतों के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए चला देगा, चलिए, नो प्रॉब्लम। ओके, रात के 3 साढ़े 3 बजे ऊंची ऊंची आवाज में आप बाइबल रीडिंग करने के लिए उठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, आप आज़ाद है, क्योंकि आपकी आज़ादी में परमेश्वर स्थापित होता है, एस्टैब्लिश करता है आपको स्थिर करता है, आपके तूफानों को शांत करता है। आपकी आज़ादी में परमेश्वर में आपको वो सब कुछ देना चाहता है जो उसके पास है। ओके, लेकिन अगर हम आज़ादी में नहीं जीवन जिएंगे, मसीह का चरित्र हम अपने अंदर उभर कर आने नहीं देंगे, तो फिर परमेश्वर का हम अपमान करते हैं। हालेलुया। हम उसकी बातों को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी मैच मत कीजिए। ओके, मैचिंग होने की कोशिश मत कीजिए। वो मसीह कैसा जी रहा है, अरे उसके अंदर का पवित्र आत्मा का अगुवाई वैसा चला रहा है उसको। ओके, हम कैसे जी रहे मसीह में, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है हमको वैसे अगुवाई कर रहा है। ओके, तो सब बर्तन एक नहीं है, सब बर्तन आंखें नहीं है और सब बर्तन हाथ नहीं है। सबके अलग अलग पवित्र आत्मा के काम, अलग अलग अगुवाइयाँ, अलग अलग तरह से मसीह में वो रूप धारण करते हुए जा रहे हैं। ओके, तो हमें ज़रूरी नहीं जैसे दूसरे मसीह वैसे हम भी अपने रूप को बना ले, नहीं, हम मसीह रूप को बना रहे अपने अंदर, तो मसीह की अगुवाई हमारे अंदर पवित्र आत्मा देता है। हमें आज बाइबल रीडिंग करने का या कुछ करने का मन हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है दूसरे लोग अब कुछ और कर रहे हैं तो हम ये नहीं करना चाहिए। नहीं, उनके अंदर कुछ और करने का मन है, उनको कहीं और कन्वेंशन में जाने का मन है, उनके अंदर से कहीं और किसी के घर में जाके प्रार्थना करने का मन है,
उनको और कुछ करने का मन है, उपवास करने का मन है, उनका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उनको जो ज़रूरत है उसके अनुसार उनकी अगुवाई करता है। हमारे अंदर जो परमेश्वर जानता है हमारी ज़रूरत क्या है, उसके आधार से पवित्र आत्मा हमारे अंदर अगुवाई करता है। ओके, तो मसीह में भी आप मैचिंग होने की कोशिश मत कीजिए। ओके, अपने स्थान को आप आज़ाद रख के मसीह की परिपक्वता में बढ़ते जाइए। आमीन। यही वचन के आधार से हमको आज सीखने के लिए मिल रहा है। देखिए 8 वचन और एक बार पढ़ेंगे। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ओके, तो हमारे लिए ईश्वरत्व जो हमको चाहिए, लोग सारे पालन करते हैं रीति रिवाजों को, क्योंकि उनको उनके भक्ति के अनुसार उनको कुछ बनना है। ओके, लेकिन हमारे लिए संपूर्णता जो ईश्वरत्व है वो यीशु मसीह के अंदर है। ओके, तो हमने और कुछ पालन करने की ज़रूरत ही नहीं बचती है। ओके, 10 वचन से आगे पढ़ेंगे। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। तो क्या हो गया है, हमारे और यीशु मसीह के बीच संबंध स्थापित हो चुका है जब हम उद्धार में आ गए। हालेलुया, हमारा खतना हो चुका है। हालेलुया। देखिए क्या है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी। कोई मैचिंग एक दूसरे के साथ नहीं कर सकता है। हमारे शरीर में वही होता है, हमारा शरीर वही करता है जो परमेश्वर का मंदिर बनने का जो रहस्य है, जिसके कारण परमेश्वर का मंदिर कहा जाता है, वही सिर्फ हमारे शरीर को आप करते हुए देखेंगे। कभी भी देखो, कभी भी, कोई भी समय, कहीं पर भी हम वही करते हुए प्राप्त होंगे जो परमेश्वर के आत्मा का मंदिर में होना चाहिए। आमीन। तो हमारे बारे में ये सीक्रेट रहता है। तो हम आगे पढ़ेंगे 11 वचन। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। हाँ, जब तक कोई मसीह शारीरिक देह को देखते हुए चलता है कि अरे मेरा शरीर इंसल्ट नहीं होना चाहिए, अरे मेरा शरीर पॉसिबिलिटीज़ में ही चलना चाहिए, अरे मेरा शरीर बेइज्जत नहीं होना चाहिए, अरे मेरा शरीर लोगों के द्वारा तुच्छ नहीं जाना चाहिए, अरे मेरा शरीर, अरे मेरा शरीर, अरे मेरा शरीर, ओके, मेरा शरीर एकदम रौनक भरा दिखना चाहिए, मेरा शरीर सबके मन को भा लेना चाहिए, मेरा शरीर कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा कुछ तो फेलियर दिखाई दे। नहीं नहीं नहीं, मेरा शरीर सब कुछ ठीक ठाक, हाँ एकदम बराबर टकाटक, ओके। नहीं, हमने वो सब घमंड को उतार के रख दिया है। ओके, अगर हम ऐसी कोई चीज़ कर देते हैं जिसके बारे में हमारे बातें उछल कर आ जाती है, कुछ बातें हमारी चर्चाओं में चली जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर हम उतार कर रख चुके हैं। कोई निंदा हमें असर नहीं करती है, कोई मजाक हमें असर नहीं करता है। ओके, हमारे शरीर का वो सब घमंड हमारे शरीर से हमने उतार के रख दिया है, कुछ है ही नहीं शरीर में। तो फिर अब क्या करना है उस शरीर का? परमेश्वर के आत्मा के मंदिर के अलावा उस शरीर का कोई और मतलब नहीं रहा है। हालेलुया। 12 वचन से आगे, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके। देखिए, आप बोलते हैं ना कि प्रेरितों के काम में कैसे वो सामर्थ के बारे में लिखा है ना, और कैसे उनको बोला है रुको वहाँ पर, और ये तो यहाँ पे लिखा है सामर्थ पर विश्वास करके।
आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर काम कर रही है। ओके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। तो विश्वास के द्वारा अपने अंदर के कामों को देखना है, पवित्र आत्मा किस प्रकार से आपके अंदर क्या क्या कर रहा है। यीशु के पीछे कोई भी बिना पवित्र आत्मा के नहीं आ सकता है। यीशु कहना भी पवित्र आत्मा ही के कारण होता है। ओके, तो इसकी वजह से आप विश्वास को अपने अंदर से उठाना है और परमेश्वर के सामर्थ का भी आपने अपने अंदर से इस्तेमाल होते हुए देखना है। वही पवित्र आत्मा है और वो ही परमेश्वर ने हमारे अंदर रहने के लिए दिया है। 13 वचन हम पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। अब यीशु और हमारा संबंध केवल एक कंडीशन पर चलता है, हमारे अपराध क्षमा हो चुके हैं। आज भी अगर हम अपने आप को पुराने समय में जब मसीह नहीं थे उन कारणों के अपराध हम याद करके अपने आप को दोष देते हैं, तो इसका मतलब मसीह और हमारा संबंध अभी तक बना नहीं, ये हम बोल रहे हैं। जबकि बन चुका है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। आप अपने अंदर उसको ले लेना है कि अब जो मसीह होने के पहले मेरे अपराध थे वो अब माफ़ कर दिए गए हैं। ओके, इसके लिए मेरे पीढ़ी में से, मेरे परंपराओं में से, मेरे रीतियों के चलने से कोई भी जो अपराध थे मेरे ऊपर, वो मेरे अंदर के सब माफ़ किए गए। तभी जाके मेरा और यीशु का संबंध स्थापित हो गया, व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो गया। आमीन। और ये ही है विश्राम स्थान। ओके, 14 वचन से आगे पढ़ेंगे। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। हालेलुया। अब देखो, पाप पाप पाप, मैं आपको बोलती हूँ कि मत बोलो आप पापी है, आप पाप मत करो। मसीहों को मत बोलो आप पाप मत करो, क्योंकि पाप का उगम कैसे कहाँ से शुरू हो गया? वो आदम और हवा ने परमेश्वर के आज्ञा पालन नहीं किया, तभी से शुरू हो गया। तो मनुष्य अगर पाप कह रहा है तो वो पाप कहाँ से उसको पता चला? व्यवस्था के आधार से। ओके, कि व्यवस्था में लिखा है ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, और ये करेंगे तो पाप है, ये नहीं करेंगे तो पाप नहीं है, ये करेंगे, ये सब व्यवस्था में से हमको मालूम पड़ा पाप क्या होता है। ओके, तो अगर समझो आज के दिन में झूठ मत बोलो, ऐसा बोलते हैं, तो झूठ बोलेंगे तो मसीह अगर झूठ बोल दिया डर के मारे या कुछ भी कारण से दबाव के नीचे आकर अगर झूठ बोल दिया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मसीह ने पाप किया। ओके, क्योंकि पाप नहीं, मसीह अब वो व्यवस्था में नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते देखा तूने पाप किया, अब पाप का दंड तेरे ऊपर आएगा। नहीं, मसीह उसके नीचे नहीं है। ओके, अगर व्यभिचार कर लिया तो मसीह व्यभिचार का दंड पाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, परमेश्वर ने व्यवस्था में लिखा है कि अगर तुम पाप करोगे तो ये सब चीज़ें होगी तुम्हारे साथ, अगर तुम पाप नहीं करोगे तो ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए होगी। ओके, उस व्यवस्था को परमेश्वर ने अब कंप्लीट कर दिया है, फिनिश कर दिया है। अब हमारे हाथ में क्या आ जाता है? अब हमारे अंदर पाप के जो काम है सिर्फ वो हमारे हाथों से नहीं करना है, हमारे जीवन में वो नहीं करना है। हमने वो सब काम करना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। ओके, अब अगर हम भूल चूक हो गई हमारे से, हम परमेश्वर का वचन चलते चलते एक समय आ गया कि हमसे वो नहीं हुआ जो हमने परमेश्वर का वचन करना चाहिए था, और हम गलती से झूठ बोल दिए। ओके, अब झूठ बोल दिए हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने पाप किया, और पाप में झूठ के असर क्या होते हैं वो आपके ऊपर डाल दिया जाएगा, नहीं। अब आपको क्या करना है? पहले यूहन्ना के पत्री पहले अध्याय के 7 वचन 8 9 10 वचन कहीं तो है, वहाँ लिखा है कबूल कर और परमेश्वर सेंत में तुझे माफ़ भी करेगा और धर्मी भी बनाएगा।
हालेलुया। तो हम काम में से जो पाप के आधार से किए जाते काम है, पाप के जो गुलामी है, वो गुलामी जो काम है, उससे हम अशुद्ध हो जाते हैं। अशुद्ध, हम पापी नहीं हो जाते, हम अशुद्ध हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो तुम खाते हो उसमें से तुम्हारे अंदर जो जाता है वो शौच में से निकल जाता है, लेकिन जो तुम्हारे मन में है, तुम्हारे मुंह, तुम्हारे जुबान से तुम बोलते हो, तुम्हारे एक्सप्रेशंस में से तुम लाते हो, प्रकट करते हो, वो तुम्हें अशुद्ध कर देता है। ओके, तो हमारी शुद्धता और अशुद्धता किसके ऊपर निर्भर है? हमारे हृदय में कौन है। ओके, क्या पाप के काम जो है, पाप के काम का आनंद हम अपने हृदय में छुपा के रखे हैं क्या? तो वो एक दिन प्रकट हो जाएगा और वही है जो आपको दूषित करेगा, अशुद्ध करेगा। ठीक है, तो हमारा हृदय हमको बारंबार चेक करना पड़ता है, हमारे हृदय की चौकसी करनी पड़ती है। परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध रख, हमारे हृदय में वही बातें रख जो हमें शुद्ध रखेगी। हालेलुया। और दाऊद भी यही कहता है कि मैं किस प्रकार से शुद्ध रहूं, कि यही वो रास्ता नहीं कि परमेश्वर के वचन मेरे हृदय में रखे हैं और मैं शुद्ध रहता हूँ। ओके, तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहने के कारण हम शुद्ध जीवन जी पाते हैं। तो अगर समझो गलती से आपने झूठ बोल दिया तो आप पाप मत बोलिए उसको, आप कहना मैं अशुद्ध हो गया। ओके, अब अशुद्ध हुए तो आपको शुद्ध होने की ज़रूरत है, और शुद्ध करने के लिए आपको वचन मौजूद है। आपने वचन को बोलना है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जो क्रूस का बलिदान किया, उसमें से जो लहू बहाया, वो लहू जब वेदी पर चढ़ाया गया, मेरे पाप माफ़ हो गए। और अब जो पाप के दाग है, परमेश्वर कहता है कि तू पश्चाताप कर, मुँह अपने आप को फेर ले, मन फेर ले अपना पाप की ओर से, अपने गलतियों की तरफ से अपना मुँह फेर दे। तेरे अपराध, ओके, तेरे गुनाह भले ही खून के धब्बे जैसे लाल धब्बे होते वैसे रहे, तो भी मैं तुझे हिम के समान शुभ्र बनाऊंगा। ओके, और परमेश्वर कहता है जैसा पूरब से पश्चिम दूर है, उतनी दूर मैंने तेरे अपराधों को भुला दिया है। जब उसने भुला दिया तो आपको स्मरण रखने की अब ज़रूरत नहीं है। और अब परमेश्वर के आत्मा से कहिए, मुझे ओवरटेक कर परमेश्वर के आत्मा, सच्चाई में मुझे बढ़ा, ताकि ये झूठ की ताकत मेरा पीछा करने ना पाए। ओके, अब जब ये झूठ की ताकत मैंने बोला आपको, तो इसका मतलब है झूठ का आत्मा आपका इंतज़ार करता है कि आप झूठ बोले। और अगर आप बारंबार वो रास्ते से जाते रहेंगे, झूठ के रास्ते से जाते रहेंगे, तो वो झूठ का आत्मा फिर आपके झूठ बोलने के अवसरों के समय में आपके जीव, आत्मा, शरीर का कब्जा करता है। ओके, और वो अपने आप को फिर आपके अंदर से बेइज्जत करने वाले रास्ते लगा देता है। इसके लिए फिर आप और कुछ गंदे काम करने शुरू हो जाते हैं जो अधर्म के होते हैं, दुष्टता के होते हैं, जैसा गुस्सा हो जाना, गाली गलौज कर देना। ये कहाँ से आ गया? क्योंकि आपने छोटा सा एक अवसर जो था झूठ बोलने का, उसमें चौकसी नहीं रखी, आप उसके अंदर से निर्दोष रहने के रास्ते नहीं चले, और इसकी वजह से अब वो एक आत्मा रास्ता ले लिया। वहाँ से अब आपका फाइनेंस फेल करना शुरू करता है, रिश्ते बिगाड़ना शुरू करता है, आपके ज़ुबान से ऐसी तीखी बात कभी बोल देगा कि आपका एक बहुत अच्छा मित्र आपका टूट जाएगा। ओके, आपके हाथ से ऐसा कुछ हो जाएगा जो बहुमूल्य वस्तु है वो नीचे गिर के टुकड़े में बिखर जाएगी। ओके, ऐसा कुछ वो आपके अंदर से कभी कर पाता है जब आपने चौकसी नहीं रखी कि कौन सा ऐसा काम है जो परमेश्वर अशुद्ध कहता है और मैंने उसे कर तो लिया और बारंबार किए जा रहा हूँ। अब क्या हो गया है? अब जो मेरा फेलियर है, फाइनेंस फेलियर हो सकता है, आपके रिश्ते बिगड़ना हो सकता है, आपका मैरिज लाइफ पीसफुल नहीं चल रहा है वो हो सकता है। तो ये सारा कहाँ से शुरू हो गया है? उस जगह को आप परमेश्वर के साथ बैठ के
ठीक करना है, दुरुस्त करना है। इसके लिए मैं ये वचन के पढ़ते वक्त पवित्र आत्मा को बोलती हूँ, हमको फिट एंड फिक्स कर, हमको ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। तो क्या हो जाएगा, उस दुष्ट आत्मा ने जो काम शुरू रखा है हमारे जीवनों को फेल करने का, जो खराब करने का, अशुद्ध रखने का, तो वो रास्ता बंद हो जाएगा और शुद्धता का रास्ता हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। हमारे जीवन की चमक परमेश्वर के वचनों की शुद्धता में निखर कर आएगी। हालेलुया। तो वो होने के लिए हम ऐसे बोलते हैं कि हमें फिट एंड फिक्स कर, यानी जहाँ हम टूटे फूटे हैं वहाँ पर हमें ठीक ढंग से रचना कर, और बाद में हमें ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में, हमें सीरियल में लेकर आ। जिस स्टेप बाय स्टेप में चलना चाहिए उसमें हमें लाकर बिठा दे। आदम को परमेश्वर ने उठा के लाया, आदन बगीचे में रख दिया। हमको भी ये बोलने की वजह से पवित्र आत्मा जहाँ पर है वहाँ से हमें उठा लेता है और उस ऑर्डरलीनेस में रख देता है जिसमें आज हमारा जीवन होना चाहिए। ओके। और फिर हम देखते हैं एक के बाद एक कैसा समय बदलता है, हमारे क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे बातों में हम आगे जा रहे हैं। ये सारा ऑब्जर्वेशन से आपको समझ में आएगा मसीह जीवन कितना इंटरेस्टिंग जीवन है और कैसा शुद्धता का आनंद, भरपूर जीवन जीने का आनंद हमारे अंदर समेट कर हम लिए हुए चल रहे हैं। आमीन। तो आपको ये सच्चाई को गले लगाना है और पाप 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 बोल के अपने ऊपर दोष लगाते नहीं बैठना है। ठीक है। देखिए क्या लिखा है, और हमारे सब अपराधों को क्षमा कर दिया, क्षमा किया। 14 वचन से आगे, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। जब आप बोलते हैं ना कि मैं क्या करूं, मेरे से ये गलती हो गई, ये वचन आपको बोलना है। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर कीलों से ये काम ठोक दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, जड़ से उखाड़ दिया गया है। जब आप इन बातों को बोलते हैं तब शैतान एंट्री नहीं कर पाता है, आपका इस्तेमाल नहीं कर पाता है, रुक जाता है, वो उसके लिए डोर बंद हो जाते हैं। ओके। उसके एंट्री पॉइंट्स बंद हो जाते हैं। वो आपको सताने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन आपका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं क्योंकि ये डोर्स आपने बंद कर दिया। आमीन। इसके लिए रोज प्रभु भोज जब आप करते हैं या रोज स्मरण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान का, तो आप शैतान को बारंबार धक्के मार के गिराते हो, ए चल हट जा। ओके। तेरा कोई कानूनी अधिकार नहीं है मेरे अंदर। रोज बारंबार आप बोल के उसको गिराते जाते हैं, उसका दम टूट जाता है, आपके ऊपर वो जोर लगा नहीं सकता है। ओके। क्योंकि शैतान के जगत के लोग शैतानी आत्मा ही के कारण आपका पीछा करेंगे। ओके। क्योंकि उनको पता है वो सामने से आपके दोस्त बने रहेंगे लेकिन उनको पता है वो दुष्ट आत्माओं को आपके जीवन के हर वो कमज़ोर अवस्थाओं के अंदर ढूंढ ढूंढ कर भरते जाएंगे। उनको पता है दुष्ट आत्माओं को आप पहचान नहीं पाएंगे। ओके। तो इसकी वजह से वो आपके सामने मीठे मीठे रहते हैं लेकिन आप देखेंगे कि वो आपके सारे गलतियों का ढेर उनके लिस्ट में बना के रखे हैं और अब एक एक दुष्ट काम दुष्ट आत्माओं के द्वारा आपके ऊपर रिलीज किए जा रहे हैं। ओके। तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब क्रूस का बलिदान ऊंचा करते हैं तो उनके दुष्ट आत्माएं बेअसर हो जाती है। आमीन। बेअसर हो जाती है। देखिए परमेश्वर खुद कहता है मेरे अलावा न्याय करने वाला कोई न्यायासन पे बैठा हुआ नहीं है, मैं खुद न्यायाधीश हूँ। आमीन। तो शत्रु भी अपने केसेस लेके किसके पास जाता है? परमेश्वर ही के सामने जाता है। अय्यूब के किताब में भी आपने पढ़ा कि सब इकट्ठे हो गए थे स्वर्गदूत अपने अपने रिपोर्ट्स लेकर और वहाँ शैतान भी मौजूद हो गया था, है ना। तो इस प्रकार से न्याय देने वाला परमेश्वर के अलावा दुनिया भर संसार के अंदर कोई नहीं है, केवल परमेश्वर है। तो दुष्ट लोग भी परमेश्वर का सामना करने के लिए जाते हैं और हम खुद मसीह लोग भी परमेश्वर का सामना करते हैं। तो न्याय के आसन के सामने हमको हियाव के साथ जाने का रास्ता है और परमेश्वर कहता है अरे कोई बात नहीं है, ठीक है,
कोई बात नहीं, तू मन फेर ले, तू पश्चाताप कर और देख, फिर मैं तेरे जितने भी गुनाह है जो तुझे बोझ बन रहे हैं, जो तेरे मन को पीड़ाएं दे रही है, उसको मैं माफ कर दूंगा। आमीन। तो हमको मन फिराने का रास्ता परमेश्वर ने रखा है, इसके लिए उसको बोला वो दया का भंडार है। वो ओके, वो दया का भंडार है। वो बारंबार आपको संभालने का रास्ता देता रहेगा, बारंबार आपको उठाता रहेगा, बारंबार वो आपके ऊपर दम तोड़ नहीं देगा, वो आपके ऊपर जिंदगी उंडेलता रहेगा अगर आप मन फिराने का रास्ता चलते हुए जिएंगे तो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में सब कुछ हमको पता नहीं है, हम न्याय नहीं कर सकते हैं। ओके, तो लोग बोलते हैं क्या है, बार बार मन फिराते और फिर वही पाप करते। माय डियर फ्रेंड्स, ओके, न्याय मत करो। हम खुद भी उसके बारे में परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं कि बारंबार हमसे ऐसा ना हो। ओके, तो हम खुद इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम दोष भी नहीं दे सकते अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर पर हमारा भरोसा है। आमीन। वो हमारा जीवन स्थिरता में लेकर आता है, वो हमको उन सारे कमज़ोर करने अवस्था से बाहर आने का रास्ता बताया है। मन फिराओ, हम तो सिर्फ रास्ता चल रहे हैं। ओके, और आज़ादी देने का काम तो परमेश्वर ही देता है। हालेलुया। वो बंधनों में से, वो बंदिशों में से हमको आज़ाद करने का काम परमेश्वर ही करता है। तो कौन सा समय उसने ठहराया है वो खुद जानता है, लेकिन हम मन फिराने से रुकेंगे नहीं। हालेलुया। जो हमारे पास मौजूद है, मन फिराओ, ये परमेश्वर का वचन, तो हम मन फिराने में कभी कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मन फिराना परमेश्वर को दोबारा प्राप्त करने का रास्ता है। हालेलुया। हम उसको कभी नहीं खोएंगे और परमेश्वर हमारे ऊपर कभी गिव अप नहीं करेगा। हालेलुया। ये बहुत बड़ा तसल्ली है मसीही जीवन के लिए। आमीन। हम आगे पढ़ेंगे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। अब कोई पावर्स, कोई प्रिंसिपैलिटीज, कोई अंधकार की शक्ति, कोई अशुद्धता लेकर आने वाली शक्तियाँ, कोई भी प्रधानताएं कैसी भी रहे, अब वो आपके सामने झुकना ही उनके लिए रास्ता है। अगर वो नहीं झुकेंगे तो परमेश्वर को पता है किस प्रकार से उनको झुकाना है। आमीन। वो रास्ता हम नहीं जानते हैं किस प्रकार से परमेश्वर उनके साथ मुकाबला करेगा, लेकिन सच्चाई का अंत हम जानते हैं कि उनको तो झुकना ही पड़ता है। हालेलुया। इसके लिए हम फाइनल रिजल्ट देखकर आनंदित होते हैं। कोई परवाह नहीं क्या है हमारे विरोध में, झुकना तो झुकना ही है। हालेलुया। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है और बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। कोई परवाह नहीं, अभी बहुत जोर लगा रहे पाप करके, अधर्म करके, हमारे ऊपर सताव डाल के, कोई परवाह नहीं है। आखिरी शब्द परमेश्वर का है। हालेलुया। और देखिए यहाँ पे क्या है 16 वचन से आगे, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। हालेलुया। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फुलता है। हालेलुया। कोई भी चीज रहो, कोई भी बात रहे, कोई भी समय रहे, कैसा भी, ओके, उनके पास एक ही घमंड करने की ताकत रहती है, शरीर। देखा, आखिरी में हमने तो सताया ही ना, देखा, आज भी हमने सताया ना, देखा, हम ही जीत गए ना, देखा। तो हर बार वो अपने शरीर को घमंड से फुला कर चलाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है उन्होंने देखी हुई बातों पर मन लगाया है।
ओके, तो हमने उनको देखकर निराश नहीं होना है, हमने उनको देखकर लज्जित नहीं फील करना है, क्योंकि उनका प्रमाण, उनका प्रूफ उनका शरीर है। हमारा प्रमाण, हमारी जीत का प्रूफ परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम उनके साथ मैच नहीं है। ओके, उनका शरीर का घमंड वो दिखा सकते हैं, उनके पास वो दिखाने के लिए है, लेकिन हमारे पास दिखाने के लिए सिर्फ मसीह यीशु है। आमीन। हम वही चाल चलेंगे हर समय, हर पल, चाहे वो अच्छा समय रहे, बुरा समय रहे। जो मसीह का रूप धारण करेगा, वही गुणों को हम अपने जीवन के अंदर से प्रकट करते हुए चलेंगे। आमीन। हम शरीर को ऊंचा करने वाला कुछ भी नहीं करेंगे। हालेलुया। हम देखिए आगे क्या लिखा है 19 वचन से आगे, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। मसीह के साथ मरना और जीना। 20 वचन से आगे, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना? ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। देखो, आप बोलते हैं ना कि ये रखा है, वहाँ पर वो रखा है, ऐसे रखा है, वैसे रखा है, इसने वो किया, उसने वो किया, लोगों ने ये हमको दे दिया, वो हमको कर दिया, लेकिन वो चीज़ें परमेश्वर कहता है उनके अंदर एक्सपायरी डेट लगी हुई है। ओके, तो आपको उसके बारे में डरना नहीं है। उसकी एक्सपायरी डेट लग चुकी है, वो कोई भी समय एक्सपायरी हो जाता है और बाद में उसका असर खत्म हो जाता है। हालेलुया। इसके लिए हमें उन सारी बातों के नीचे अपने आप को दबाव में नहीं लाना है, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है, परमेश्वर के अनुसार नहीं है। सिर्फ वही ठहरा रहता है जो परमेश्वर के अनुसार है। हालेलुया। जो परमेश्वर के अनुसार नहीं, उसमें हमें डर रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई बीमारी, कोई ऐसे विपत्ति, कोई प्रकार की बातें, कोई प्रकार का नुकसान आपके जीवन में नहीं कंटिन्यू नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, समय बदल जाएगा आपका। ओके, तो इसकी वजह से आप परमेश्वर की ओर से आपके समय बदलते रहने वाले हैं, अच्छे समय आपके जीवन के अंदर भरते रहने वाले हैं। इसका कारण क्या है? मनुष्य के जीवन में जो आज्ञाएं, शिक्षाएं हैं, वो तो वेस्ट हो जाते हैं, वो रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है। ओके, लेकिन परमेश्वर का जो कुछ भी है वो ठहरा रहता है। इसके लिए आपके जीवन का बदलना, आपने आशा रखना बिल्कुल जायज़ बनता है। आमीन। बिल्कुल जायज़ बनता है। हालेलुया। जो आज आप पीड़ाओं में हैं, कल आपका दिन बदल जाना, अगला समय आपका बदल जाना बिल्कुल जायज़ बनता है। हालेलुया। 23 वचन से आगे पढ़ेंगे। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हालेलुया। ये सब कुछ जो भी आप देखते हैं, ओके, जो भी सिखाई बातें हैं मनुष्य के जीवनों में रूढ़ी परंपराओं के द्वारा, ओके, तो ये सारी चीज़ों के द्वारा लोग क्या करते हैं? अब आप देख सकते हैं हर एक घर के अंदर नशा करने वाले लोग नहीं रहते हैं, किसी किसी घर में है। हर एक घर के अंदर आप देखते हैं वो अन्य जाति है, ओके, उनकी भक्ति अन्य जातियों में है, लेकिन फिर भी उनके घर के अंदर लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ, मिलाप के साथ, एकदम आनंद के साथ, हर्ष के साथ रह रहे हैं। ओके, कैसे संभव है ना? क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई शिक्षाएं ले रखी है, ऐसा कोई आज्ञा पालन कर रखे हैं जिससे उनको वो स्थिरता मिल रही है। ओके, लेकिन वो उसके कारण वो घर के अंदर दूसरे बातों के अंदर, दूसरी अवस्थाओं के अंदर कोई भी समय वो एक्सपायर हो जाता है उनका वो पावर।
खत्म हो जाता है, कुछ पीढ़ियों के बाद वो खत्म हो जाता है, कुछ दिनों के बाद वो खत्म हो जाता है। उनको दोबारा से लेकर वो पावर्स को यूज़ करने वाला रास्ता चलना पड़ता है। ओके, उनको वो विधियाँ पालन करनी पड़ती है। अगर वो विधियाँ पालन नहीं करेंगे तो उनको जो बेनिफिट्स वो देख रहे हैं अपने फैमिली मैटर्स में, वो बेनिफिट्स उनको नहीं मिलेंगे। तो वो सब कुछ उनको शरीर से करते हुए चलना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी। और जिस पीढ़ी में वो रुक जाता है उनके घरों की अवस्थाएं बिगड़ने लगती है। ओके, तो इस प्रकार से है, आपके शारीरिक वासनाएं आप उसके द्वारा तृप्त करते हैं। आपके शारीरिक वासनाओं को आप रोक नहीं सकते उन सारी बातों को करके। ओके, आप शारीरिक लालसाओं को रोकने में उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, आप सोचोगे कि मैं ये ऐसे ऐसे कुछ करूँगा, ऐसे ऐसे कुछ करूँगा, ये करूँगा और बस मैं फिर छूट जाऊँगा ऐसे गलत काम करने से। नहीं, आप नहीं छूट सकते हैं। ओके, कोई भी शरीर की लालसाएं, नहीं मैं तो लालच नहीं करूँगा, मैं इसके बारे में ऐसे करूँगा, फिर मुझे लालच नहीं होगा। नहीं, आप नहीं कर सकते हैं वैसा, क्योंकि उसमें दम है ही नहीं। आपको छुटकारा सिर्फ मसीह यीशु के रूप में आप चलने से मिलता है। ओके, मसीह यीशु का रूप आपके अंदर धारण करते हुए आप जिएंगे तो ही आप ऐसे कोई भी वासनाओं से, लालसाओं से आप छूट जाते हैं। कोई मनुष्य की बनाई हुई कोई विधि, कोई रीति, कोई रूढ़ी से कुछ भी शरीर की अवस्थाओं में स्थिरता नहीं आती है। वो लालसाएं वो खत्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मनुष्य जाति के अनुसार बनाए हुए संसारिक रीति रिवाजों में अपने मन को नहीं लगाना है। सिर्फ वचन जो कहता है, मसीह की आज़ादी में जो हम हैं उसको हमने थाम कर रखना है अपने अंदर और उसी को हमने जीना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा, तूने हमें इन वचनों के अधीन लाया, हमें सिखाया, हमें फिट एंड फिक्स किया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, तूने हमें ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में रचना करके हमें इन वचनों के आधार दिए। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे और भी इन वचनों का गहरा मतलब हमारे अंदर खोलता रहे और इसके अनुसार हमारा हृदय भरता जाए और हम परमेश्वर के जैसा, परमेश्वर का पुत्र प्रिय यीशु मसीह है, उसके रूप में हम धारण होते जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।